This news is brought to you by Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل۔ میں ہوں عائشہ تحسین۔ عالمی خبر نامے سے اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کے سربراہان کے ساتھ کانفرنس ورچوئل اجلاس کوارٹ میں چین کی عسکری اور معاشی اثر و رسوخ پر بات کی گئی۔ اتحادی ممالک نے خطے میں سیکیورٹی اور تعاون پر زور دیا۔ امریکی شہر ڈیلس اور گرد و نواح کے شہروں میں مقیم پاکستانیوں کو ان کی دہلیز پر ویزا سہولت فراہم کرنے کی مہم۔ پاکستان سوسائٹی آف نارتھ ٹیکساس کے تعاون سے 1 روزہ ویزا کیمپ لگایا گیا۔ افغان عبوری انتظامیہ میں طالبان کو شامل کیا جائے، روس اپنا موقف سامنے لے آیا۔ ماسکو میں افغان امن مذاکرات سے قبل روسی ترجمان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ عبوری متفقہ حکومت کی تشکیل کا فیصلہ خود افغانوں کو مصالحاتی مذاکرات کے دوران کرنا ہے۔ ترکی اور مصر کے درمیان 7 سال سے کشیدہ تعلقات میں بہتری آنے لگی۔ دونوں ممالک کے درمیان 2013 کے بعد پہلی مرتبہ سفارتی رابطہ ہوا ہے۔ ترک انٹیلیجنس حکام نے مصر کے سیکیورٹی حکام سے معاشی، سفارتی اور سیاسی معاملات پر بات کرنے کے لیے قاہرہ میں ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی۔ افغانستان کا صوبہ ہرات کار بم دھماکے سے گونج اٹھا۔ پولیس چیک پوسٹ کے قریب دھماکے کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک اور 60 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق زخمیوں میں بچوں کی بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع گلگام میں بھارتی فوج کی گاڑی نالے میں جا گری۔ حادثے میں 1 اہلکار جم بحق، اوت میجر اور کیپٹن سمیت 3 اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ بھارت میں اب جمہوریت نہیں رہی۔ بھارتی اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے جمہوری اقتدار کے نگران ادارے کی رپورٹ کا حوالہ دیا۔ رپورٹ میں بھارتی حکومت کی جانب سے میڈیا پر پابندی، حد کی عزت جیسے قوانین کے بے جا استعمال کا حوالہ دیا گیا۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں خوفناک آگ نے گورنمنٹ فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ سے مرنے والوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ حکام کے مطابق واقعے میں 2 درجن سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آگ لگنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ سعودی اپوزیشن لیڈر الیکسی نالوانی کو جیل سے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ نالوانی کے وکلاء نے سوشل میڈیا پر پوسٹ میں بتایا کہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اب الیکسی نالوانی کہاں ہیں۔ سعودی بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے وزیر حج و عمرہ کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ کابینہ میں رد و بدل کرتے ہوئے ان کی جگہ عصام بن سعید کو قائم مقام وزیر مقرر کر دیا گیا۔ سعودی عرب نے بین الاقوامی پروازوں کی بحالی میں توسیع کر دی۔ 31 مارچ کی بجائے 17 مئی سے بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ سعودی ایویشن اتھارٹی نے خراب صورتحال والے ممالک کے لیے فلائٹ آپریشن معطل کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ سال 2020 کے دوران دنیا بھر میں 65 صحافی اپنی صحافتی خدمات کی انجام دہی کے دوران ہلاک ہوئے۔ بین الاقوامی تنظیم کی رپورٹ 16 ممالک میں یہ افراد ٹارگٹ حملوں، بم حملوں اور کراس فائرنگ کا نشانہ بنے۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان کی اہم خبریں۔ حکومت پاکستان نے اپوزیشن کے اتحاد PDM کو سینٹ میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین دونوں نشستوں پر شکست دے کر بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ حکومتی امیدوار صادق سنجرانی دوبارہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے، جبکہ نائب چیئرمین کا عہدہ مرزا محمد افریدی کے نام ہوا۔ سینٹ الیکشن میں ووٹوں کی کھلی خرید و فروخت ہوئی، وہاں بکرا منڈی لگی، مگر انصاف کے نظام نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ارکان پارلیمنٹ اور دانشوروں سے خطاب۔ وزیر اعظم صاحب نے القادر یونیورسٹی کے دورے میں شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔
सेनेट इलेक्शन जीतने पर वफाकी वजीर बराए साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ओपोजिशन को तंज का निशाना बना दिया। अपनी ट्वीट पर लिखा कि डिप्टी चेयरमैन के वोट में एक भी वोट जाया नहीं हुआ, जिससे जाहिर होता है कि ओपोजिशन सेनेटर्स के सीखने की सलाहियत काफी अच्छी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने सेनेट इलेक्शन को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि सेनेट में अपोजिशन को वाज़ेह अक्सरियत हासिल थी, लेकिन गिलानी साहब जीतने के बावजूद कुर्सी पर नहीं बैठे। पाकिस्तान की अवानी वाला में प्रेजेंटिंग ऑफिसर नौ मुंतखब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से हलफ लेते हुए गलती कर गए। असरअंदाज को नजरअंदाज पड़ गए। सादिक संजरानी ने भी इसी गलती के साथ जुमला दोहरा दिया। PIA ने वफाकी वजीर असद उमर के खरीदे गए टिकट की सीट किसी और मुसाफिर को दे दी। कराची जाने वाली परवाज 1 घंटे ताखीर का शिकार हो गई। असद उमर गैर पेशावराना अमल पर फ्लाइट छोड़कर तैयारे से ही उतर गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आइंदा 2 माह के लिए दिफा 144 नाफिज कर दी गई। ज़िला इंतजामिया ने आलमी वबा कोरोना केसेस में इजाफे को पेश नजर ये कदम उठाया है। लाहौर में प्राइवेट स्कूल्स मालकान ने कोरोना के बायस स्कूलों की बंदिश के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं 45% प्राइवेट तालीमी इदारों की इमारतें किराए पर हैं। 20,000 स्कूल बंद होने से 60,000 उस्ताद बेरोजगार हो चुके हैं। कराची में चलते ट्रक से हैवी मशीनरी 7 चलने वाली मोटरसाइकिलों पर गिर गई। 2 मोटरसाइकिल सवार चंबाहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। दुनिया ताहाल आलमी वबा कोरोना वायरस के शिकंजे में। दुनिया में 11 करोड़ 96 लाख 9 हजार से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। मूसी वायरस से मरने वालों की तादाद 26 लाख 51,700 हो गई है। पाकिस्तान में भी कोरोना में इजाफे के साथ मस्बत केसेस की शरह 5.5% हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 40 अफराद जान से गए। 2000 से ज्यादा नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। हर 5वीं अमरीकी शख्स ने कोरोना वबा में अपना रिश्तेदार या इंतहाई करीबी दोस्त को खोया है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च का इंकशाफ सर्वे से ये भी मालूम हुआ है कि कोरोना के बायस सबसे ज्यादा मुतासिर सियाफाम कम्युनिटी हुई है। जायद वजन और मोटे अफराद पर कोरोना वायरस का हमला ज्यादा शदीद और खतरनाक हो सकता है। अमराज से तहफ़्फ़ुज़ तदराक के अमरीकी अदारे ने खबरदार कर दिया। नई तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर होकर अस्पताल में वेंटिलेटर तक पहुँचने वालों की 69.1% तादाद मोटापे का शिकार थी। दुनिया में जुड़वा बच्चों की पैदाइश की शरह अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 16 लाख जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी हर 42 में से एक जोड़े के यहाँ जुड़वा बच्चा पैदा हो रहा है। गुज़श्ता 30 सालों में जुड़वा बच्चों की पैदाइश की शरह में 32% इजाफा एशिया जबकि 31% शुमाली अमेरिका में हुआ। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड अदाकारा जेनिफर लोपेज और अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी ने मंगनी खत्म करके अलहदगी अख्तियार कर ली। 2 साल बाद रिश्ता खत्म करने पर मदाहों में दुख और तशवीश की लहर दौड़ गई। पाकिस्तानी क्रिकेटर फवाद आलिम ने क्रिकेट के बाद अदाकारी के मैदान में भी एंट्री दे दी। वेब सीरीज खुदकश मोहब्बत में अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। फिल्म के पोस्टर में फवाद आलिम की तस्वीर को मदाह भी खूब सराह रहे हैं। मौजूदा दौर के मकबूल तरीन गुलकार आतिफ असलम 38 बरस के हो गए। म्यूजिक कैरियर के आगाज का बताते हुए कहा कि पहला गाना कॉलेज ट्रिप के लिए दिए जाने वाले पैसों से रिकॉर्ड करवाया और गिटार भी 13 बरस की उम्र में दोस्त ने दिया था। भारत में बच्चों के हकूक के इदारे ने नेटफ्लिक्स से बॉम्बे बेगम्स बंद करने का मुतालबा कर दिया। नोटिस में वासिया किया है कि पूजा भट्ट की वेब सीरीज में नाबालिगों को कोकेन इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। बॉलीवुड की नई आने वाली फिल्म पठान में किंग खान के नए रूप ने मदाहों को हैरान कर दिया। एक्शन सीन की शूटिंग में लंबे बालों में शाहरुख खान बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। मुंबई की गलियों आम लड़के से आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर बनने की कहानी सुनाती बॉलीवुड हदायतकार और अदाकार फरहान अख्तर की नई फिल्म तूफान का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म में फरहान अख्तर मरकजी किरदार जबकि नामवर अदाकार परहेश राहुल इनकी कोच का किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब ने बड़े शहरों के बाद छोटे शहरों में भी मजीद 7 सिनेमा घर खोलने का अंदिया दे दिया। इंतजामिया कहती है कि पुराने सिनेमा घरों में नशिस्तों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। आइए अब देखते हैं तिजारत की दुनिया से। पाकिस्तान के रोशन डिजिटल अकाउंट में 6 माह में 67 करोड़ डॉलर इकट्ठे किए गए। 100 से ज्यादा ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी अब तक RDA में 1 लाख अकाउंट्स खोल चुके हैं, जिसमें 67 करोड़ 10 लाख डॉलर की रकम जमा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 5 पैसे इजाफे से 157 रुपए 14 पैसे पर बंद हुई। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर 5 पैसे के इजाफे से 157 रुपए 30 पैसे है।
पाकिस्तान में सोने की कीमत में यकदम बड़ी कमी हो गई। फी तोला कीमत में 2250 रुपए की कमी के बाद फी तोला सोना 1,44,050 रुपए हो गया। वजीर आजम इमरान खान ने आइंदा चंद माह गैस की कीमतें न बढ़ाने का हुक्म दे दिया। ये फैसला वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत महंगाई में कमी से मुतालिक इजलास में हुआ। मुत्तहदा अरब इमारात का इसराइल में स्ट्रेटेजिक शोबों के लिए $10 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान। फंड तारीखी इब्राहिमी माहदे पर कायम है। इसका मकसद खत्ते की 2 तरक्की पजीर माशियतों के दरमियान माशी और इक्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, देखते हैं इस न्यूज में। बरतानिया के इलाके वेस्ट 6 में रात के वक्त बादलों पर आग सी लग गई। शहरी अनोखे मंजर को देखकर हैरान रह गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का नया सिस्टम दाखिल होने के बाद गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुतवक्को तूफान को मामा का नाम दिया गया है। भारत के जंगलात से सोने के भंवरे दरियाफ्त हुए। महकमा जंगलात के ऑफिसर ने वीडियो शेयर की जिसमें सुनहरे रंग के कीड़े मकोड़े बिल्कुल सोने की तरह नजर आ रहे हैं। क्रिसोमैलिडी का ताल्लुक पत्तों में रहने वाले भंवरे की फैमिली से है। अमेरिका में मुस्कुराते चेहरे के ओमजिस वाला सांप ब्रीड हो गया। 20 साल से सांपों की ब्रीडिंग पर काम करने वाले जस्टिन कोबलिका गोल्डन नीले और सफेद रंग के सांप की ब्रीड कराने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन कुदरती तौर पर अंडे से हाल पर मुस्कुराते हुए चेहरे के ओमजिस बना सांप सामने आया। अनोखा सांप $6,000 में फरोख्त हुआ। ट्विटर ने चंद नए फीचर्स की आजमाइश शुरू कर दी है, जिससे समाजी राब्ते की वेबसाइट पर तस्वीर को देखने का तरीका बेहतर हो जाएगा। जब सारिफ तस्वीर ट्वीट करेगा तो कंपोज में नजर आएगी कि टाइमलाइन में वो फोटो कैसे नजर आएगी। बड़ी तस्वीर और चार्ट के अपलोड को आइंदा चंद हफ्तों में टेस्ट किया जाएगा। और आखिर में शामिल करते हैं दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। अल-कद्रा नगलिस्तान दुबई की सरजमीन पर एक खूबसूरत इजाफा है। 5.5 लाख मुरब्बा मीटर फैले नगलिस्तान में 2 दिलों की मानिद मोहब्बत की झील खला से भी नजर आती है। इंसान का तैयार करदा नगलिस्तान में 16,000 दरख्त और कई इकसाम के लातदाद फूलदार पौधे उगाए गए हैं। बेगोनिया पौधे से लव का लफ्ज भी लिखा गया है। बादलों के दरमियान उड़ती गाड़ी की वीडियो ने दुनिया को हैरान कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जीप को एक खातून बादलों में उड़ा ले जा रही है, लेकिन ये सिर्फ नजर का धोखा है। दरअसल ये अमेरिकी खातून रियासत हवाई की हेलिका पहाड़ी पर सफर कर रही थी, जहां बादल पहाड़ से नीचे थे। बरतानिया में एक मजूर कुत्ते और नबीना लोमड़ी की मसाली दोस्ती के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हो रहे हैं। मजूर कुत्ता जब वॉक पर घर से बाहर निकलता है तो अना लपास लोमड़ी इसके पीछे पीछे चलती है। कुत्ता गलत जाने पर भौंक कर लोमड़ी को खबरदार भी करता है। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज पाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का निहारी और कबाब, पाए पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद बाई से। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू। 3106446395। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।